Hello everyone, what is up? I hope everything is fine and welcome back to our channel Photon. I'm Sweta Padma Parija, a third year physics major student at ISA TVM. And by this time when I'm shooting this video, I have 95 subscribers. So I think by the time this video goes live, I think I'll get 100 subscribers completed. So first of all, thank you so much for getting my first 100 subscribers on this channel. I'm so happy. So this video is going to be about all the must-haves, those necessary documents for IIT 2025 counseling. Because without these documents, there might be cases where you may not get an admission into ISER even after you getting a very good rank in IIT 2025. So please watch this video till end. I'm going to discuss about all of these documents and I'm going to also add some clips of my offer letters, those documents that I submitted and stuff like that. So yeah, please watch the video till end. So now first of all, talking about counseling rounds. Now, according to me, I predict that the counseling rounds are going to be from 10 to 11 counseling rounds this year. But in every counseling round, whenever you get a seat for the very first time, you will be having an option of float or freeze. So for example, I got ISA TVM in the first round itself, then I will be getting an option of float and freeze. Now for example, I floated it. In the next round, even if I get the same college once more, I'll again get an option of float and freeze. So yeah, in every counseling round, if you get a seat, you will be having this option of float or freeze. So now if you float a certain ISER seat, then you will be getting an offer letter from that particular ISER, which will be on the portal itself. You can download it from the portal. Now it will be basically showing the date. I will be showing my offer letter right over here. That is basically the very first time when I floated for ISER TVM. And before that, I think I got ISA Berhampur, and ISA Berhampur offer letter I didn't download. So for example, you have floated for the very first time, you don't want that college for now, you are opting for some better colleges for your first preference, second preference and so on. So yeah, you can float it for sure. And after floating it, every time you float it, every time you get a seat, you will be getting an offer letter. So for example, you got one college for three consecutive amount of times, then 3 times you will get offer letters. Their dates will be separated. So yeah, once you get the preferred ISERs that you wanted to go in and you decide to freeze that ISER, for example, you are sure that you want to take that seat and you freeze it. After that, you won't have a chance of getting any ISER that you have in your upper preferences. You'll be fixing that ISER seat. Then your email account which you have registered, make sure that you have given your correct email account. I have made a mistake. तो मेरा जब भी ऑफर लेटर आया था पहली बार, मैंने जब फ्लोट कर दिया था, उसके बाद जब मैंने फ्रीज किया था, since it was my very first time, I didn't know कि क्या करना था, कैसे करना था, कब email आता. I didn't have any idea. So my email wasn't coming for number of days. So तब तक I was waiting and then I contacted the IIT helpline and they were like कि तुम्हारा email ID क्या है? And I was like कि this, then they were like तुमने ये डाला हुआ है. So there was a mistake in spelling or something. तो जिसके कारण से मेरा email ही नहीं आ रहा था. So make sure that you have your correct email ID already given. If not, then जब आप freeze करते हो, आपको तुरंत email आ जाता है from a particular ISER. तो अगर नहीं आ रहा है, so please make sure to contact the particular ISER that you've gotten. The helpline number is on their portal all the time. तो प्लीज़ मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट देम एंड यू टेल देम अबाउट योर प्रॉब्लम. तो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे. आपके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे ही वो लोग मेल भेजेंगे. तो डू दैट. तो जब आपने फ्रीज कर दिया कोई भी ISER सीट, देन यू स्टार्ट रिसीविंग द ईमेल. तो जो फर्स्ट ईमेल आता है, आई विल अटैच इट समवेयर हियर. सो उस ईमेल में बेसिकली आपके प्री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर लिखा होता है. सो उस ईमेल में मैं आपको यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डाल दूँगी बेसिकली कैसा ईमेल होता है. सो वो जो प्री रजिस्ट्रेशन का लिंक होता है वो मोस्टली आपके फ्रीज करने के 1 से 2 दिन तक वैलिड रहता है. आपको 1 से 2 दिन के अंदर उसको फिलअप करना होता है. एंड आपको जब आपने फ्लोट करा होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या फिर अगर आपने पहले राउंड में ही फ्रीज कर दिया होता है, तो आपको SAF देना पड़ता है जिसपे कि आपको एक फी रिसीट मिलती है. तो फी रिसीट को आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है. वो जो PDF है उसको रखना है क्योंकि वो यूज़ होगा बाद में. आपके प्री रजिस्ट्रेशन के वक्त भी यूज़ होगा. आप जब फिजिकल रजिस्ट्रेशन करने के लिए ISERs में आओगे तब भी वो यूज़ होगा. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट लूज इट. कीप द फी रिसीट ऑफ पेइंग 35,000. वैसे तो वो SBI कलेक्ट में कलेक्ट करते हैं. तो इवन इफ यू डोंट कीप इट एज सच, तो आपके ईमेल पे वो वैसे भी भेज देते हैं. बट मेक श्योर दैट यू हैव द PDF ऑफ द फी रिसीट. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें जो DU नंबर होता है, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड. तो ड्यूरिंग योर प्री रजिस्ट्रेशन, दोज थिंग्स दैट यू हैव टू फिल अप, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी योर पर्सनल डिटेल्स. देन एकेडमिक डिटेल्स, उसका मतलब है कि 10th 12th के मार्क्स, ये सब चीज़ें. तो फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव दोज 10th और 12th का मार्क्स, प्लीज़ मेक श्योर अगर आपके पास मार्कशीट इस वक्त तक अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट योर स्कूल्स एंड गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल. और अगर ये नहीं हो पा रहा है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द आफ्टर you get your seats and stuff, please contact the helpline कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका मार्कशीट अभी तक आया ही नहीं है. Then वैसे तो एक फॉर्म मिलता है, I'll be talking about it later, but then please make sure कि आपके पास एक मार्कशीट हो as soon as possible.
फिर पेरेंट्स के डिटेल होते हैं, फिर मेलिंग डिटेल्स होते हैं, उसमें वो आपके पूरा ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद कुछ फाइल्स आपको अपलोड करनी होती हैं, उसके बारे में आई टॉक विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एंड देन एसएएफ डिटेल्स, आपने एसएएफ फी जो है वो पे करा होता है, सो फॉर दैट ऑल्सो आपको वो डिटेल्स सबमिट करनी होती है। और उसमें जो है उस ईमेल में एक PDF आया हुआ रहता है जिसपे कि आपको जो एक्स्ट्रा फ़ी होती है, जो लेफ्ट आउट फ़ी होती है, वो भी सबमिट करना होता है। फॉर एवरी कॉलेज इट्स डिफरेंट, सो उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, तो वो है। एंड या आपको वो जो SBI फ़ी कलेक्ट है उसी में ही कैसे आपको पे करना है उसका पूरा डिटेल्ड एक PDF स्ट्रक्चर आपको मेंशन होगा उसी ईमेल में। तो नाउ द सेवेंथ थिंग इज कोर्स रजिस्ट्रेशन। आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करना होता है विच इज़ लाइक द प्री रजिस्ट्रेशन। आपके जो कोर्स होंगे, उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन होगी। आपको बस टिक 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 करते करते आई एग्री वाला वो एक लाइन लिखा हुआ उस पर टिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर डिक्लेरेशन एंड प्रीव्यू, इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिक्लेरेशंस वही होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक फोटो अटैच कर दूंगी जो डिक्लेरेशंस है वहाँ पे, तो आपको बस इसको पढ़ना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और फिर और क्या क्या चीज़ें होती है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हॉस्टल रूल्स होता है, फिर BSMS गाइडलाइन बुक होता है, यही सब चीज़ें होती है। तो आपको ये सब चीज़ें मतलब अपने लिए गो थ्रू करना है। आपके लिए भी पहली बारी है तो आपको भी एक्साइटमेंट होगा कि पहली बार हॉस्टल जा रहे हैं, वहाँ का हॉस्टल कैसा होगा, क्या रूल्स है, क्या रूल्स नहीं है। तो आपके जो कर्फ्यू पीरियड है वो कब से कब तक है, कौन कौन आपको मिलने आ सकते हैं, क्या हो सकता है, तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो आप एक बार उससे गो थ्रू कर लेना। और प्रीव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट मेक श्योर, बहुत सारे बच्चों ने ये किया होगा कि जब आपने एप्लीकेशन फिल किया था तब OBC की जगह OBC NCL की जगह OBC क्लिक कर दिया था, EWS की जगह जनरल क्लिक कर दिया था। तो आपको पता है कि व्हाट इट कैन कॉज। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था मेरे चैनल पे दैट शी वाज EWS आई थिंक एंड शी क्लिक्ड ऑन जनरल, एंड अब वो कुछ कर नहीं पा रही है बिकॉज ये नहीं होता है कुछ भी आइजर में। आपने एक बार जो भी कैटेगरी चूज कर लिया, आप उसको एंड तक नहीं चेंज कर पाते हो। सिमिलरली इस प्री रजिस्ट्रेशन में कोई भी चीज़ आप गलत बिल्कुल मत फील करिएगा, क्योंकि वंस यू हैव डन इट, वंस यू हैव फिल्ड इट, आप एक बार प्रीव्यू कर लिए, सबमिट कर लिए, उसके बाद देयर इज नो वे पॉसिबल कि आप उसको चेंज कर सकते हो। एंड जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो गए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स से वो लोग मैच करेंगे आपके फिजिकल कॉपीज़ को। तो मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही फिल हो। 2 दिन का या फिर 1 दिन का कम से कम टाइम मिलता है आपको जब वो ईमेल आता है, तो आपके पास बहुत टाइम है। बिल्कुल हड़बड़ाहट में कुछ भी गलती मत करिए, उसको बार बार चेक करिए, कोई भी थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपका उसी में आंसर दे दूँ कि आपको क्या फिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी गलती ना करो वाइल फिलिंग द फॉर्म अप, बिकॉज वंस यू हैव फिल्ड अ प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिटेड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अब जब आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है, उसके साथ ही आपको एक और ईमेल आएगा जो कि मैं यहाँ पे कहीं पे अटैच कर दूँगी। सो वो ईमेल में बेसिकली आप को आइजर में आने का डेट बताते हैं वो लोग कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है आइजर में। सो वो फाइनल रिपोर्टिंग होता है फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें जो है आपको एक गूगल डॉक्यूमेंट मिलता है। तो यहाँ पे मैं वो गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगी, यू कैन सी इट। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक किया होगा उसका आपको एक स्क्रीनशॉट डालना होगा एंड मतलब PDF फॉर्म में उसको अपलोड करना होगा। एंड सेकंड थिंग इज आपको टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ अराइवल यहाँ पे मेंशन करना होगा। नो नीड टू वरी कि आपको रात को, आधी रात को आ रहे हो, सुबह में आ रहे हो। वो पूरा ऐसे जोन किया हुआ होता है कि आप सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में आ रहे हो, या फिर आफ्टरनून में आ रहे हो, या फिर लेट नाइट आ रहे हो, कब आ रहे हो। सो जस्ट मेक श्योर कि आप वहाँ पे मेंशन कर दो सो दैट आपको हॉस्टल रूम्स मिलने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हॉस्टल रूम्स आपके लिए अलॉटेड होके मतलब हो रखे हो, तो इसीलिए जस्ट मेक श्योर कि आप वो गूगल फॉर्म फिल आउट कर लो। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर फॉर योर एडमिशन। सो पहला डॉक्यूमेंट तो ऑफर लेटर है। यहाँ पे मैं अपना ऑफर लेटर अटैच कर दूंगी, तो ऐसा ही एक ऑफर लेटर आपको मिलेगा। तो आपको उस ऑफर लेटर में क्या करना है, जब आपने बेसिकली फ्रीज किया हो ना, जो ऑफर लेटर उस वक्त आपको मिला हो उसी को डाउनलोड करना है और उसी का फिजिकल प्रिंट आउट रखना है और उसी का ही PDF फॉर्म वहाँ पे अपलोड करना है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और उसके पीछे एक एडमिशन फॉर्म भी होगा विच आई मेक श्योर कि मैं कहीं पे तो अटैच कर दूँ, यहाँ पे कहीं पे अटैच कर दूँ। आई जस्ट सी, आई कांट रिमेंबर कि मेरे पास है या नहीं इस वक्त, क्योंकि एडमिशन फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि आपको जेरोक्स वगैरह रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, उसके PDF अपने पास ही होते हैं। सो आपको बस एक ही एडमिशन फॉर्म रहता है, उसका आप ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर प्रिंट आउट, जस्ट मेक श्योर कि सब कुछ क्लियर मेंशन हो वहाँ पे। तो आप बस उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो एंड उसको फिल कर दो, एंड फिल करके उसका PDF जो है वहाँ पे अपलोड कर दो प्री रजिस्ट्रेशन में। एंड वो PDF तो आपके फ़ोन में या फिर आपके डिवाइस में होगा ही, बाकी वो जो ओरिजिनल प्रिंट आउट है उसको आपको फिजिकल जब आप रजिस्ट्रेशन करने आते हो देन यू हैव टू सबमिट इट। सो मेरा जब वो था तो मैंने वो सबमिट कर दिया था। सो नाउ आई डोंट रिमेंबर कि मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज पड़े हैं या नहीं, बट अगर पड़े होंगे तो आई मेक श्योर कि आई अटैच इट समवेयर। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, फॉर्मेट आपको आपके ऑफर लेटर के साथ ही मिल जाएगा। सो आपको बस उसको प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको फिल करना है एंड मेक श्योर कि आपका वो जो सील हो, जो भी डॉक्टर आपको एग्जामिन कर रहा है, साइन और सील उस डॉक्टर का
वो एक MD होना चाहिए, मिनिमम MD होना चाहिए। MBBS इज़ नॉट अलाउड टू गो टू सम हॉस्पिटल। तो आप ये कर सकते हो। एंड अब आप कहाँ से करवाएं, बहुत बेसिक चेकअप होता है। फॉर एग्जांपल वेट, हाइट, आपके विजन सही है या नहीं, आपकी हियरिंग सही है या नहीं, ये सब चीज़ें होती है, ब्लड ग्रुप वगैरह। तो या आप मोस्टली कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर प्राइवेट में जाते हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो जहाँ पे भी जाते हो वो ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको पता है क्या करना है। एंड देन आपको रिजर्व कैटेगरीज से अगर आपको वैसे तो मैं खुद जनरल कैटेगरीज से हूँ, सो अगर कोई और भी जनरल कैटेगरी से है या फिर ऐसे और कोई भी कैटेगरीज है जो कि अनरिजर्व कैटेगरीज है, आपको कोई रिजर्वेशन मिलती नहीं है इस पर, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है और आपके पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स होगी भी नहीं। सो फॉर जनरल पीपल प्लीज लिसन टू दिस कि आपके पास ऐसी कोई जनरल कैटेगरी वाली कोई सर्टिफिकेट नहीं होगी, आपको कुछ नहीं सबमिट करना है, आपको बस लिख देना है कि आई एम जनरल, मतलब आई एम जनरल नहीं, कैटेगरी में बस जनरल लिख देना है, दैट्स इट। पर जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, आप वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आप अपने प्री रजिस्ट्रेशन में जो आप वहाँ पे दिखाओगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हों। फॉर एग्जाम्पल SC ST के लिए जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो करेक्ट है। OBC NCL और EWS के लिए यू नीड टू हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन certificate which is issued on or after April 1, 2025. So then coming to the hall ticket and rank card. So hall ticket basically आपका जो एडमिट कार्ड था जब आपने एग्जाम दिया था, आई होप आपने उसको फाड़ के ना फेंका हो, अगर फेंक भी दिया हो तो आपका जो ईमेल में या कहीं पे तो PDF तो सेव ही होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि उसका एक प्रिंट आउट निकालो बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड। उसको आपको प्री रजिस्ट्रेशन में भी देना है और फिजिकल रजिस्ट्रेशन में भी आपको चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज आपका रैंक कार्ड, आपका जो स्कोर कार्ड आया होगा उसका भी एक प्रिंट आउट फॉर्म चाहिए। एंड देन 10th एंड 12th सर्टिफिकेट। अगेन आई एम सेइंग कि जो भी लोगों का अभी तक 12th का सर्टिफिकेट आउट नहीं हुआ है, प्लीज मेक श्योर टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। कॉन्टैक्ट योर स्कूल्स, क्योंकि DG लॉकर वाला नहीं काम करता, यू नीड अ पर्टिकुलर 10th 12th सर्टिफिकेट, तो वो चाहिए आपको फिजिकल फॉर्मेट में। उसका ओरिजिनल नहीं लेंगे वो लोग, पर हाँ मेक श्योर कि आप उसका ओरिजिनल अपने साथ लेके आओ, ठीक है। आप उसका ओरिजिनल का ही फोटो आप अपलोड करोगे प्री रजिस्ट्रेशन में। जब फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका वो लोग जेरोक्स ही मांगेंगे, तो उसका 1-2 जेरोक्स कर लेना और वो लोग ओरिजिनल देखेंगे, देख के आपको रिटर्न कर देंगे। बट उसका ओरिजिनल भी लेके आना और जेरोक्स भी लेके आना। जेरोक्स वो लोग रख लेंगे और ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देंगे। देन कमिंग टू ID प्रूफ, जैसे हमारे टाइम पे आधार कार्ड में लेके आई थी एज एन ID प्रूफ, मेरे पास कुछ और था ही नहीं। सो अभी के टाइम पे आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ला सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी कि हाँ एग्जाम में आपका आधार कार्ड नहीं एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ नहीं होगा। नो, इट्स एन ID प्रूफ, आप उसको लेके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। फोटो जो होता है तो आपको एक फोटो पासपोर्ट साइज वहाँ पे डालनी है, और जब आप फिजिकल रजिस्ट्रेशन पे आ रहे हो तो आपको 2 फोटोज चाहिए विथ यू। और आपके जो ID प्रूफ के लिए जो फोटो विच इज बेसिकली द इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी कार्ड, जिसके लिए आपको फोटो एक खींचा जाएगा, वो वहीं पे खींचा जाएगा व्हाइल योर फिजिकल रजिस्ट्रेशन इज हैपनिंग, तो वहीं पे आपका एक फोटो लिया जाएगा। तो अगर आपको एक सुंदर फोटो चाहिए अपनी ID पे तो सुंदर से बन ठन के आना। फिर आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा वहाँ पे। एंटी रैगिंग एफिडेविट, हाँ एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है वो भी आपको मिल जाएगा वहीं पे ही ऑफर लेटर के साथ। वो 4 पेज का होता है, उसको आपको पूरा फिलअप करना है। ये हर आइजर के लिए होता है, कॉमन है, नॉट ओनली इन आइजर TVM। फिर एक TC का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो बहुत स्कूल्स में क्या होता है कि एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें वो जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो TC कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और कुछ स्कूल में अलग अलग देते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि दोनों चीज़ का ओरिजिनल लेके आओ। एंड जो TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल वो लोग ले लेंगे, डोंट हैव टू वरी कि वो फ्यूचर में और कहीं पे यूज होगा, कहीं पे नहीं यूज। और फिर फी रिसिप्ट, तो मैंने आपको बोला है कि आपको वो SF का भी फी रिसिप्ट निकालना है, और जो रिमेनिंग फी पेमेंट है उसका भी आपको फी रिसिप्ट कलेक्ट करके रखना है अपने पास। एंड PDF में आपको उसको सबमिट करना है, एंड आपको ओरिजिनल पेपर अपने पास रखना है, वो आपसे ले लेंगे। हाँ, एंड वन मोर थिंग कि आप जब ये जो फी रिसिप्ट वगैरह मतलब उन लोगों को दे रहे हो या फिर कलेक्ट कर रहे हो ना, मेक श्योर कि कोई ड्राइव बना लो, ड्राइव में कोई फोल्डर बना लो जिसमें सारे फी रिसीट ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकली आप उसको प्लेस करते जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि वन टाइम है ये, बस एडमिशन कर लिया खत्म। नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं इंस्पायर के लिए एलिजिबल हो, तो उनको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत तरह तरह के अदर स्कॉलरशिप होते हैं, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो या फिर सिलेक्टेड हो जाते हो, मेरे टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी ये सारे फी रिसिट्स ढूंढने में। सो इसके कारण से आपको फर्स्ट ईयर के भी फी रिसिट संभाल के रखने होते हैं, सो दैट यू कैन शो कि आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन किया था, इतना फी आपको पे करना पड़ा था। एंड फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू कम टू आइजा TVM, सो जब आप आइजा TVM में आओगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिलाइटफुल टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि तब ओणम चल रहा होगा, ऑलमोस्ट खत्म होने को आया होगा, बट स्टिल एट मेनी प्लेसेस यू विल सी दोज फ्लावर रंगोली। आई डोंट नो इफ दे आर कॉल्ड फ्लावर रंगोलीज और नॉट, बट या दे आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड हर जगह आपको बहुत सारे लोग ऐसे तैयार होकर घूमते घूमते दिखाई देंगे, एंड will be very nice time of the year. So yeah, welcome to ISET TVM all of you guys, and all the best for your counseling. I hope this helps, and also please make sure कि आप freeze और float ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करो, and never be in hurry. So yeah, and I hope you get your dream ISET this time. If you like this video, please like it and comment down below all your queries, whatever your doubts are now or during the counseling process. I'll be here. Please subscribe to my channel. जल्दी 500 subscribers तक पहुंचा दीजिए, and please turn on the bell notification so that every time I upload a video you don't miss out on it. And until next time, doodles.